تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ عوام کی جانب سے شیخ الکل فی الکل کا خطاب ملا، انگریزی حکومت کی جانب سے آپ کو شمس العلماء کا بھی خطاب ملا۔ انگریز نے نذیر حسین دہلوی جو بھابھیوں کا شیخ الکل فی الکل بنا پھرتا ہے، امام اس کو شمس العلماء کا خطاب دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس میں الدر المنصور کا باقاعدہ عکس دیا ہوا ہے آخر میں، کہ صرف ایک نذیر حسین دہلوی ہی کیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انگریزی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، یہ اس کے آخر میں وہ عکس ہے۔ یہ صفحہ نمبر 426 پر ایقاظ الدر المنصور کے ایک صفحے کا عکس، یہ تقریباً 7 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک یہ ہے شمس العلماء، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس جگہ ایک فہرست ان حضرات کی لکھتا ہوں کہ جن کے نام نامی اس تذکرہ میں درج ہوئے ہیں اور ان کو ہماری گورنمنٹ عالیہ کی طرف سے خطاب عطا ہوا ہے، اور وہ کل 7 ہیں۔ 5 ان میں سے وہ ہیں جن کو شمس العلماء کا خطاب مرحمت ہوا، اور 2 وہ ہیں جن کو خان بہادر کا خطاب بخشا، وہ حاضر ہی۔ یہ شمس العلماء جناب حضرت مولانا محمد سعید، شمس العلماء جناب مولانا محمد حسن، شمس العلماء عبد الرؤف، شمس العلماء امجد علی خان، شمس العلماء نذیر حسین دہلوی، یہ آگے، اور یہ آگے خان بہادر کے۔ تو یہ 5 وہ ہیں جن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کتاب ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد، یہ ابو سعید محمد حسین لاہوری یعنی بٹالوی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تصنیف ہے، اور اس نے یہ ساری کتاب جو ہے وہ اسی سلسلے میں لکھی ہے۔ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد جو ہے وہ نہیں کرنا، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فساد ہے، بلکہ جہاد کو منسوخ تک کہاں اس کے اندر کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا یہ قسم سوم خاص برٹش گورنمنٹ کی رعایا جو کسی اسلامی ریاست کے ماتحت نہیں، ان تینوں اقسام سے ہر ایک قسم کا برٹش گورنمنٹ سے دوستی و ترک مقابلہ و لڑائی کا عہد ہو چکا ہے۔ یہ تینوں قسموں کا گورنمنٹ سے دوستی کا اور ترک مقابلہ و لڑائی کا عہد ہو چکا ہے۔ کہتا 3 قسمیں ہیں، ایک اسلامی ریاستوں کے رئیس ہیں، دوسرے ان رئیسوں کے ماتحت رعایا ہے، تیسرے جو ہے خاص لوگ ہیں جو کسی اسلامی ریاست کے ماتحت نہیں۔ تینوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ انگریز سے دوستی کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اب تیسری قسم کے حوالے سے لکھتا ہے 48 قسم ثالث سے بعض اشخاص کا صریح لفظی و حقیقی عہد ہو چکا ہے، یعنی تیسری قسم کہ جن کا انگریز سے عہد ہو گیا کہ ان سے دوستی رکھیں گے، ترک مقابلہ کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے۔ کہتا ہے صریح لفظوں میں ہمارے بعض لوگوں نے ان کے ساتھ یہ حقیقی لفظی معاہدہ کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریراً اور تقریراً حاضر و غائب خیر خواہی و وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں اور ان کی خدمت و معاونت میں سرگرم ہیں۔ یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔
इन लोगों में पंजाब के अहले हदीस दाखिल हैं, ये सराहतन लफ्ज मौजूद है। ये इसका 49 सफ़ा है। कहता है कि मौलवी इस्माइल देलवी जो कुरान हदीस और कुरान से बाखबर और उसके पाबंद थे, कुरान हदीस भी जानते थे, कुरान हदीस के पाबंद भी थे, लेकिन अफसोस है कि कुरान हदीस के पाबंद होने के बावजूद उन लोगों को इतना पता नहीं चला कि इस्लाम अपने मुखालिफ जितने भी हैं कुफार उनके साथ जिहाद करने का हुक्म देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जिहाद व मादिन, जिहाद जारी रहेगा, लेकिन ये लोग जिहाद को मनसूख करने वाले हैं। कहते हैं कि इस्माइल देलवी जो कुरान हदीस से बाखबर और उसके पाबंद थे, अपने मुल्क के हिंदुस्तान में अंग्रेजों से जिनके अमन व आहद में रहते थे नहीं लड़े, अंग्रेजों से नहीं लड़े और न इस मुल्क की रियासतों से लड़े हैं। इस मुल्क से बाहर होकर कौम सिखों से लड़े, सिखों से लड़े हैं, अंग्रेजों से नहीं लड़े। इस्माइल देलवी जिनको हिंदुस्तान के अंदर तहरीक जिहाद का हीरो बनाकर पेश किया जाता है, वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ता रहा है, अंग्रेज की हमायत में लड़ता रहा है। अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ा बल्कि सिखों से लड़ा है। क्यों? कि अंग्रेज को सिखों से खतरा था। इसका सफा नंबर अल-इक्तिसाद, इसका सफा नंबर 72 है। कहते हैं इमाम कहां है जिसकी पनाह में और इसके अमर इजाजत से मुसलमान जिहाद कर सकें, और ऐसी जमयियत व शौकत किसको मुयस्सर है। यानी अब कोई पेशवाई नहीं रही, इमाम ही नहीं है कि जिसको साथ लेकर आदमी जिहाद करे। अब सवा 71 में कहते हैं शरी जिहाद तब ही मफकूद है जब से शरी इमामत व खिलाफत दुनिया से मफकूद हुई है, कि ये शरी जिहाद नहीं है, जो आदमी जिहाद करे वह फसाद कर रहा है। शरायत व असाब इमामत इनमें पाए जाते थे कि लड़ाइयों को बनाम नाम नेहाद जिहाद उन्होंने की है, शरी जिहाद नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान में वाबियों ने जिहाद नहीं किया, जिन्होंने किया है कहता है वो शरी जिहाद नहीं। सवा 74 से आगे और पीछे भी काफी सारी ऐसी बातें हैं कि जहां पर उन्होंने लिखा है कि जिहाद जो है वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं किया जाएगा। यह है मासरे सिद्दीकी, इसके हिस्सा दोम सफा 91 पर यह इबारत है। अंग्रेज की तरफ से इसको जो खिताब मिला था उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं नवीद मुसर्रत इफ्जा से आपको इतला दी गई है कि गवर्नमेंट इंग्लिशिया से दिया जाना खिताब नवाबी वखलात नवाब सिद्दीक हसन खान बहादुर शोहर मुशफ़िका को मंजूर हुआ है। आज ये अल मुखल्लस बातीब खातर इस जलसा मुसर्रत व निशात में जो महज वास्ते इस तकरीब सईद के मुनक़द हुआ है, नवाब साहब ममदू को खलत व खिताब अतिया गवर्नमेंट अंग्रेजी से मखला व मुखातब करता है और सब अखवान व अरकान को सराय आम से इतला देता है कि खिताब नवाब वाला जा अमीरुल मुल्क बहादुर और खलत फाखरा इस दर्जा आला का सरकार इंग्लिशिया से नवाब साहिब बहादुर ममदू को अता फरमाया गया है। यानी बाकायदा तौर पर अंग्रेज ने एक तकरीब और जलसा मुनक़द किया और उस जलसे के अंदर नवाब सिद्दीक को बाकायदा बुलाकर नवाबी का और इसके अलावा को और खलतें भी दी, इनामात दिए, अतिये दिए और बताया कि यह हमारा हमायत करने वाला आदमी है, मुखालिफ नहीं है। इसी मासरे सिद्दीकी का सफा नंबर 162 यहां पर दो टोक लिखता है। कहते हैं वाबियत को गवर्नमेंट की मुखालफत से क्या ताल्लुक व सरोकार हो सकता है। यानी वाबियों को गवर्नमेंट से कोई मुखालफत नहीं है, इन्हें कोई जरूरत ही नहीं है कि उसकी मुखालफत करे। क्यों? इसलिए कि वो इनके खैरखा हैं और इनको नवाजने वाले हैं, तो लिहाजा ये उनका खा के उनके खिलाफ किस तरह तहरीक पैदा कर सकते हैं। इसी के 157 पर
ये इस्माइल देरवी के हवाले से बात लिखी है, जिसको ये अमीरुल मुजाहिदीन न जाने क्या कुछ कहते हैं। कहता है मुजाहिदीन के पेशवा मौलाना सईद अहमद साहब थे, मगर वो वाइज न थे। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब वाइज थे, उनकी नसीहतें नहायत वलवला अंगेज असर रखती थीं, मगर उन्हें कभी कोई लफ्ज अपनी जुबान से ऐसा नहीं निकाला जिससे उनके हम मशरबों की तबीयत जरा भी गवर्नमेंट अंग्रेजी की तरफ से मुनहरिफ होकर बर अफरोख्ता हो। सारी उम्र अंग्रेज के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। एक मरतबा जबकि वो सिखों पर जिहाद करने का वाज फरमा रहे थे, इतनाए वाज में किसी शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप अंग्रेजों पर जिहाद करने का वाज क्यों नहीं करते, ये भी काफिर हैं। आपने उनके जवाब में फरमाया कि अंग्रेजों के आद में मुसलमान को कुछ अजियत नहीं है। यानी यार यहां शरी और शरायत की बात नहीं है, शरी जिहाद की बात नहीं है, इमामत की बात नहीं है। यहां वो दो टो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई अजियत नहीं है, उससे दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई शिकवा नहीं है, लिहाजा वो हमें आराम दे रहे हैं, लिहाजा हम उनको आराम पहुंचाएंगे। बल्कि सिख जो अंग्रेजों को खटकते थे और उनको परेशान करते थे, उनका जोर कम करने के लिए वो सिखों के खिलाफ जिहाद करते रहे। और चूंकि हम अंग्रेजों की राया हैं, इसलिए हम पर अपने मजहब की रूह से यह बात फर्ज है कि अंग्रेजों पर जिहाद करने में हम कभी शरीक ना हो। यह वहाबिया का दीन है कि जिसमें अंग्रेजों की हमायत करना भी फर्ज है। तो ये अपने फर्ज से किस तरह जो है वो अपना मुखालफत कर सकते थे। ये अंग्रेज की हमायत को फर्ज जानते थे और एक इस्लामी फरीजा समझ कर उसकी हमायत कर रहे थे। ये तहरीक आज़ादी फिक्र और हजरत शाह वलीउल्लाह की तजदीदी मसाई, उसके सफा नंबर 107 पे लिखता है, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी अंग्रेजी हुकूमत से तामुन के हक में थे और बाजार वो अंग्रेजी निजाम के सनाखां। हुसैन बटालवी कौन है? 108 पर ही देख लें। कहता है मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जय्यद आलिम और दूर अंदेश मुफक्किर भी था, जय्यद आलिम भी था वाबियों का, लेकिन बावजूद इसके वो क्या अंग्रेजी हुकूमत से ताउन के हक में थे और बाजार वो अंग्रेजी निजाम के सनाखा। इससे आगे चलिए, ये सिर दिलबरा आ गई। ये हबीबुर रहमान यजदानी के हालात वाकयात पर मुश्तमिल है। लिखने वाला है अजीजुर रहमान यजदानी, उसका भाई हबीबुर रहमान यजदानी का। इसके सफा नंबर 61 और 62 पर अपने शेखुल कुल उस्ताजुल अरब वल अजम मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी की दास्ताने खिदमत अंग्रेजी हुकूमत यूं बयान करता है। कहता है गवर्नमेंट बरतानिया ने उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया और आगे उन्होंने जंग आजादी के हक में फतवा ना दिया था। जंग आजादी के हक में वाबियों के शेखुल कुल फिल कुल उस्ताजुल अरब वल अजम मुहद्दिस देलवी ने फतवा नहीं दिया, बल्कि क्या किया, एक अंग्रेज औरत मिसेस लेसन्स को जख्मी हालत में देखा, उसे उठाकर घर ले आए और 3.5 माह उसकी खिदमत की। 3.5 माह तक उसकी खिदमत करता रहा और फिर जब वहां पहुंचाया उसको तो फिर क्या मिला, मयारुल हक। बहुत कुछ मिला जिसको बाद ने बयान कर दिया और बाद में छुपा दिया। इसी मयारुल हक जिसको जामिया तरीमुल कुरान वल हदीस साहु वाला ने शाया किया है या गोंदलवी ने इसकी तहकीक और तखरीज की है, मोरे तहकीक और इस पर मोरे तस्दीक भी सबत कर दी। इसके सवा 18 पर शेखुल कुल हजरत मौलाना सैयद नजीर हुसैन साहब इसके बारे में लिखता है कि 1857 का इनकलाब बिल्कुल बेकायदा था, अंग्रेजों की बदकिरदारियों के सबब तकरीबन पूरे मुल्क में फैला, लेकिन बदनज़मी की वजह से नाकामी पर मुंतज हुआ। मियां साहब ने इसमें एक अंग्रेज औरत को बागियों से बचाया और उसे पनाह दी। यह बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक था। एक अंग्रेज की हमायत करना फर्ज, उसके खिलाफ जिहाद करना हराम, और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी हुकूमत की हमायत में लड़ने वालों को बागी करार दे दिया, और चौथे नंबर पर यह कह दिया कि जनाब फिर अंग्रेज औरत की जनाब इज्जत की, उसको बचाया और कहता है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। अब मुसलमानों के अमल इस्लामी तालीमात के मुताबिक हों तो वो भी शिर्क और बिदअत की नजर हो जाते हैं, लेकिन यहां उनका बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। अंग्रेज औरत को बागियों से बचाना, निरा बचाना नहीं बल्कि 3 माह से ज्यादा उसकी खिदमत भी की है।
اور یہ آ گئی کتاب سیرت سنائی، ثناء اللہ امرتسری کی سیرت لکھی ہوئی ہے، اور مصنف کا نام ہے عبد المجید خادم سودھروی، سرگودا ضلع گجرانوالہ سے چھپی ہے۔ یہ سودھرا ضلع گجرانوالہ سے عبد المجید خادم سودھروی، صفحہ نمبر 372 پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے، بات کر رہے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی کی، جس کو جید عالم اور دور اندیش مفکر اس نے تسلیم کیا ہے، اسماعیل سلفی نے۔ کہتا ہے کہ لاہور میں آرٹ تراویح کی ترویج آپ ہی سے ہوئی، اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قادیانی، اور یہ نیچے آ جائیں تھوڑا سا، نیچے کہتے ہیں حکومت کی خدمت بھی کی، انہوں نے بٹالوی صاحب نے حکومت کی خدمت بھی کی، یہ حکومت کی خدمت کرتے رہے، اور نذیر حسین دہلوی جو ہے وہ انگریز عورت کی خدمت کرتا رہا، اور وہ انگریز پھر ان کو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی تھا۔ کہتا ہے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر پائی، اس کو جاگیر ملی، اور نواب صدیق حسن کو کیا ملا؟ خطابات بھی ملے، کئی لاکھ روپے بھی دیے اس نے۔ یہ موجیں اڑاتے رہے اور انگریز کی حمایت کے نعرے لگاتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے حیات طیبہ، اگر انگریز کی حمایت کرنا یہ حیات طیبہ ہونا ہے تو پھر حیات خبیثہ نہ جانے کس بلا کا نام ہے۔ یہ 201 پر لکھا ہے، مولوی اسماعیل صاحب نے یہ اعلان دے دیا تھا، سرکار انگریزی پر نہ جہاد مذہبی طور پر واجب ہے نہ ہمیں اس سے کچھ مخاصمت ہے، یعنی ایک تو کہ مذہبی طور پر جو مذہب وہابیوں کا ہے اس میں واجب نہیں ہے، اگر کہتے ہیں نمبر 2 اگر واجب ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں انگریز کے ساتھ ہمارا، ہم صرف سکھوں سے اپنے بھائیوں کا انتقام لیتے ہیں۔ اور اس کا صفحہ نمبر 364، جب مولانا اسماعیل صاحب نے جہاد کا آغاز فرمانا شروع کیا ہے اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا، آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا، ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے، ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے۔ ظاہر اپنوں کو آزادی دی جاتی ہے تو اپنے تھے ان کے، اس لیے آزادی دی اس نے، مگر اگر ہاں ایک تو آزادی ہے لیکن اس سے آگے دیکھیے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ اب جس کی گورنمنٹ تھی اس کو تو چاہیے کہ وہ اس پر آنچ نہ آنے دے، تو مسلمان اس کو اپنی نہیں تسلیم کرتے، وہ تو اللہ اس کے رسول کو اپنا مانتے ہیں اور ان کی شریعت کو اپنی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 369 بھی دیکھ لیں، یہ 369 ہے۔ کہتا ہے بھلا مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلش سے کیوں سروکار ہونے لگا تھا جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی ادا کر سکتے تھے؟ یعنی یہ دوسرے مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، کہ ان کو کیا وجہ تھی کہ وہ انگریز کے خلاف کیوں جہاد کر رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ 370 پر یہ جملہ ہے، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بلکہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ تو یہ حوالہ جات پکار کر اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ غیر مقلد وہابی لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے، اللہ رسول کے غدار تھے اور انگریزی حکومت کے وفادار تھے، نمک خار تھے اور اس کے حامی تھے۔ تو جب اتنے پیار اور قریبی
ताल्लुकात उनके साथ कायम थे, प्यार भरे ताल्लुकात, तो उन्होंने इससे फायदा ये उठाया, चूंकि ये वहाबी थे और हैं भी, और पीछे गुजर गया, कट्टर वहाबी तक अपने आप को कहा गया, और आज भी कहते हैं कि हम वहाबी हैं। तो वहाबी का माना चूंकि गलत था, इसका माना नमक हराम भी होता है, बागी भी होता है, और वाकई अल्लाह रसूल के बागी हैं, अल्लाह रसूल के नमक हराम हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी मेहरबान और अपनी रहम दिल सरकार अंग्रेजी हुकूमत से ये दरख्वास्त उनको पेश की कि हमें जो है ना आज के बाद वहाबी ना कहा जाए, चूंकि हम आपके खैर खां हैं, लिहाजा आज के बाद हमें अहले हदीस के नाम से याद किया जाए। ये तर्जमान वहाबिया देख लें, नवाब सिद्दीक की, इसका सफ़ा 61 है। बहस माना वहाबी, इसके नीचे ये छोटी सी बात, और फिर आगे चलते हैं। चनाचे 1875 में मौलवी मोहम्मद हुसैन सरगरो मुवहिदीन लाहौर ने बजवाब व सवाल व मसला और उस फतवे के कि आया बा मुकाबला गवर्नमेंट हिंद मुसलमान हिंद को जिहाद करना और अपनी मजहबी तकलीद में हथियार उठाना चाहिए या नहीं, यह जवाब दिया है और बयान किया है कि जिहाद और जंग मजहबी का मुकाबला ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंद या बा मुकाबला इस हाकिम के जिसने आज़ादी मजहबी दे रखी है अज़रुवे शरीयत इस्लाम अमूमन खिलाफ व ममनू है। और वो लोग जब मुकाबला ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी उस बादशाह के कि जिसने आज़ादगी मजहब दी है हथियार उठाया था, उठाते हैं और मजहबी जिहाद करना चाहते हैं, कुल ऐसे लोग बागी हैं मुस्तहिक़े सजा। यानी वो सारे माज़अल्लाह मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ इकदाम किया, जंग की, मुखालफत की, मुखासमत की, उसको यहां भगाने के लिए कोशिश की, वो सारे के सारे बागी हैं और सबको सजा देनी चाहिए माज़अल्लाह। और ये नीचे यही आ रहा है सिलसिला इसका। कहता है कि सब अपनी रजा इस्लामी व ईमानी से इस फतवा को कबूल किया है और जाना माना है, यानी जितने भी वाबी लोग हैं सब ने इस फतवे को तस्लीम किया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना यह बगावत है और ऐसे आदमी को सजा देनी चाहिए। कहता है कि फिरका मुवहिदीन को हथियार उठाना खिलाफ ईमान व इस्लाम के है। वाबियों को अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाना ये उनके नजदीक ईमान के भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है, जो उनका खुद घड़ा हुआ खुद साख्ता हुआ इस्लाम है। इसके ये सफा नंबर 62 पर उन्होंने ये थोड़ा सा लिखा है कि उनको दरखास्त कैसे दी गई और फिर जो है ना वो वहाबी से अहले हदीस किस तरह बने। कहता है कि बाद इसके फिरका मुवहिदीन लाहौर ने साहब बहादुर मौसूफ की रूह बकारी में इस्तदा पेश की कि मुवहिदीन जो लफ्ज बदनाम वहाबी से पुकारे जाते हैं, यानी वहाबी ये बदनाम लफ्ज है और इतलाक इस लफ्ज का आमतन मुवहिदीन पर किया जाता है, सो बतौर सरकारी इश्तिहार दिया जाए कि आइंदा फिरका हाय मुवहिदीन लफ्ज बदनाम वहाबी से ना मुखातब किए जावें। चुनाचे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिब बहादुर मौसूफ ने इस दरखास्त को मंजूर किया और फिर एक इश्तिहार इस मजमून का दिया गया कि मुवहिदीन हिंद पर शुबा बदखाही गवर्नमेंट हिंद आमतन न हो और खुसूसन जो लोग के वहाबियान मुल्क हजारा से नफरत ईमानी रखते हों और गवर्नमेंट हिंद की खैरखा हैं, ऐसे फिरका मुवहिदीन मुखातब बा वहाबी ना हों। तो फिर उनको क्या कहा जाए? मौलवी मोहम्मद हुसैन का तरीक यह है कि मुवहिदीन लफ्ज वहाबी से ना पुकारे जावें और खुसूसन ये लफ्ज अलामत बदखाही गवर्नमेंट हिंद में मशहूर है, इसलिए लफ्ज का इतलाक खैर खाहाने गवर्नमेंट हिंद पर